So good afternoon, students. So this is a summary of problem, right? What we have calculated. Now, first, shell ID is equal to 418 mm, right? Second, number of tubes of which is equal to 288, right? Third, baffle spacing which is equal to baffle spacing equal to 180 mm, right? Length of tube which is equal to 10 feet or in meter 3.048 meter. Okay. Now tube arrangement, right? Triangular pitch, right? With PT is equal to 1.25 times DO, right? Then fifth, tube OD, right? Tube outside diameter which is equal to 15.875 mm, and tube ID is nothing but is equal to tube ID internal diameter is 13.3858 mm. In this way, we can design shell and tube heat exchanger. These are the parameters: shell ID, number of tubes, वेपर spacing कितनी रखनी चाहिए हमें, the length of tube, ठीक है, tube arrangement and tube OD and ID. So this is the design of shell and tube heat exchanger, right? Design of shell and tube heat exchanger, right? Heat exchanger. So here no phase change takes place, no phase change. यहाँ पे कोई भी फ्लूइड का आपका फेज चेंज नहीं हो रहा है, no phase change, right? So next session we will discuss design of condenser and reboiler, right? Design of condenser, right? Means phase change, right? आपको पता है कि कंडेंसर में फेज चेंज होता है,
right? But before solving a problem of designing a condenser, let's discuss what are the selection criteria between horizontal condenser and vertical condenser. We have two condenser. Condenser can be put either horizontally or vertically. जो कंडेंसर है वो हम वर्टिकल भी पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं, ठीक है? तो उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ओके, वो पहले देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंडेंसर एंड वर्टिकल कंडेंसर, राइट? कौन सा चूज करना चाहिए, वेदर वी शुड हॉरिजॉन्टल कंडेंसर और वर्टिकल कंडेंसर। Now for only fill wise condenser, right? Generally for horizontal condenser, right, horizontal position will give higher heat transfer coefficient than vertical position, ठीक है? अगर आप वाइज कंडेंसेशन हो रहा है, जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, film wise condensation and drop wise condensation, right? You know that, right? So generally for film wise condensation, right, horizontal condenser gives higher heat transfer coefficient than vertical condensation. Now ऐसा क्यों होता है, क्यों हॉरिजॉन्टल कंडेंसेशन में हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में मिलता है फिल्म वाइज, ठीक है? Now in film and condensation, thickness of condensation film over heat transfer surface decide the value of condensation, ठीक है? हमें पता है, ठीक है, कि value of heat transfer coefficient depends upon the film thickness, ठीक है? अगर आपका फिल्म थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो आपका कम है, राइट? Now with horizontal position and shell side condensation, the condensation travel less distance over heat transfer surface before falling down by gravity compared to a vertical position, right? But with vertical position, condensation travel over entire tube length before falling down by gravity, ठीक है? So क्या होता है जनरली, मान लो कि आपके पास दो कंडेंसर है, हॉरिजॉन्टल कंडेंसर है और वर्टिकल कंडेंसर है, फॉर एग्जांपल, राइट? सो अगर आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल कंडेंसर है, फॉर एग्जांपल कंडेंसर, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका ट्यूब साइड है और ये फॉर एग्जांपल के आपका शेल साइड है, ठीक है, शेल साइड फॉर एग्जांपल, ठीक है? नाउ जैसे ही आपकी वेपर यहाँ पे वेपर एंटर हुई, ओके, ठीक है, मान लो कि आपके कंडेंसेशन आपका शेल साइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कंडेंसेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है? तो जैसे ही वेपर यहाँ पे वेपर इनलेट है शेल साइड, ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट में आई, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन, यहाँ पे आपका कूलिंग है, फॉर एग्जांपल ट्यूब साइड कूलिंग है, राइट? यहाँ पे आपका कंडेंस हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे कंडेंस है, आपका जो भी आपका लिक्विड है वो डायरेक्टली यहाँ पे आपका फॉल हो जाएगा बाय ग्रेविटी यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, मतलब क्या कि आपकी जो कंटिन्यूअसली फिल्म यहाँ पे ऐसे नहीं होती, कंटिन्यूअसली फिल्म यहाँ पे, ठीक है? जैसे भी यहाँ पे कांटेक्ट आया आपका, मतलब हिट आपका मतलब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, कूलिंग के कांटेक्ट में आए, बट इनडायरेक्ट बीच में वॉल है, ठीक है? आपका जो कंडेंसेट वो यहाँ पे बाय ग्रेविटी वो फॉल हो जाएगा, फॉल, मतलब ऐसी कंडेंसेट नहीं बनेगी आपकी। अगर फिल्म बनी तो क्या वो फिल्म बनेगी यहाँ पे भी और ऊपर भी, यहाँ पे फिल्म बनी तो क्या करेगी, यहाँ पे आपका जो मतलब वो फिल्म है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फॉर हीट ट्रांसफर,
तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आपका कम हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। बट ये हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपका जो कंडेंस हुआ वो डायरेक्टली फॉल डाउन, ग्रेविटी से फॉल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट हैपन इन वर्टिकल कंडेंसेशन, फॉर एग्जांपल कि ये आपका वर्टिकल कंडेंसर है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके वेपर आई है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका कंडेंसर बना यहाँ पे, तो वो कंडेंसर ऐसे बाय ग्रेविटी थ्रू सरफेस ऐसे फॉल होगा, ऐसे मतलब हर टाइम ये आपका कंडेंसर फिल्म है वो होगा, एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये कंडेंसर फिल्म है वो इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि मान लो कि आपका सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये आपका वर्टिकल ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे आप कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन ऐसे ऐसे डाउन होगा ऐसे, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा सरफेस पे, ठीक है। मतलब ऐसी कंटिन्यूसली फिल्म आपकी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों यहाँ पे ग्रेविटी से फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी से ही निकल रहा है, बट वो फ्लो है वो सरफेस में होकर फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये थिकनेस है कंडेंसर फिल्म की, दैट विल प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, तो अब वो आपके इतने हीट ना ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहाँ पे हीट कोएफिशिएंट है वर्टिकल कंडेंसर में वो लेस होगा, वर्टिकल कंडेंसर में। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये एक में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और एक वर्टिकल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल में जितना भी मतलब यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, ठीक है, वो डायरेक्टली नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, फॉल डाउन। तो आपका जो भी लिक्विड कंडेंसेट है, ठीक है, उसकी फिल्म नहीं बनेगी यहाँ पे, है वो यहाँ पे फिल्म आगे मतलब क्या है कि आपका जो फिल्म कांटेक्ट में नहीं है लिक्विड फिल्म, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंडेंसर में क्या है आपका हाई है, हॉरिजॉन्टल कंडेंसर, हॉरिजॉन्टल कंडेंसर में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो हाई होता है, ठीक है। नाउ राइट, सो यही मैंने यही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, विद वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। यहाँ वर्टिकल पोजीशन कंडेंसर ट्रैवल ओवर द एंटायर ट्यूब लेंथ बिफोर फॉलिंग डाउन बाय ग्रेविटी, सो एवरेज कंडेंसेशन फिल्म थिकनेस obtained with horizontal position is less, right, then the same with the vertical position, सर सर right, क्योंकि वर्टिकल कंडीशन में पूरा का पूरा लेंथ है वो, उसमें आपका पूरा का पूरा थिकनेस रहेगा, ट्रैवल होगा आपका कंडेंसर, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वर्टिकल कंडेंसर में, इसलिए उसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो मेरा कम होता है। तो ये थी सिर्फ कंडेंसेशन, यहाँ पे सिर्फ कंडेंसेशन हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है। व्हाट हैपन इन कंडेंसेशन विद सबकूलिंग, इन केस ऑफ कंडेंसेशन विद सबकूलिंग, मतलब आपका यस यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग सर। यस पार्थ, सर वॉइस कट થઈ है तुम्हारी। यस पार्थ, सर वॉइस कट हो रही है आपकी। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आपका यस सर। आवाज नहीं आ रही है। सर everyone is not getting। यस पार्थ, am I audible? Yes Parth, Yes sir, now audible, but sir in between there is fluctuation।
You are not audible. Your voice is fluctuating, sir. Not clearly. Yes, Raj. Yes. સર તમારી અવાજ કટ થાય છે. Yes, you can. Sir, there is a network issue in your mobile. So our voice is not coming to you. My voice is fluctuating, but I'm not able to hear you. That's why, sir. I'm not able to hear Check your you. network. Headphone બદલાવો સાહેબ. Yes. I'm not. My voice is not clear. Yes. Hello. Hello, sir. સર ને નથી સંભળાતું એમ તો ગયા મુકા. સર ને headphone PPT વહી બદલવાની જરૂર છે. Hello. Am I audible now? સર અમારો voice આવે તમને? નથી આવતો લાગે. मेरी आवाज आ रही है? हमारी sir. आवाज आ रही મેરી આ રહી. મુકા માર્ક આવી ગયા. આવેલા જોયા मेरी आवाज आ તો रही है? હવારનો કહ્યું. મુક્કા કેટલીક વાર નવા નવા ગોત્યા હોય. આ હું હવારનો કહું આવી ગયા હે તમે માનતા જ નથી. જોજે હવે બીજા સબ્જેક્ટ ના આવી ગયા છે. Okay. Acha. ધીરે ધીરે આવે. So that might be due to the HOD મેલ કર્યો લાગે ડાયરેક્ટ માર્ક problem, network problem. એ જ સાચું. હાલો સર. 1 minute. અમારો અવાજ આવે છે સર? સર ઇગ્નોર મારે. સર હવે રેવા દે આજે. નહીં ભેગું થાય તમારે. So due to net problem, okay, I will take lecture on some other day, જો કીધું ને. right? Let me check. રીઝન માં નાખ દેજો સર ડ્યુ ટુ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. Network is full, but what happened, I don't know. So I will mark your attendance. So I will take lecture on some another day. Sir, can we leave? સરને સંભળાતું જ નથી. લીવ થવાની. સર સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. વોટ્સએપ માં મેસેજ નાખે. એ રીઝન નાખતા હશે
due to network problem. સર કાલે એટેન્ડન્સ લીધી હતી? Yes, you can leave. Okay, आपका attendance mark हो गया है, ठीक है, you can leave. સર કાલે આપને એટેન્ડન્સ લીધી સર? નહીં સર લીધી. ઓકે હાલો. હા ભાઈબંધ લઈ લીધી હતી. ઓલામાં નથી દેખાડતા પોર્ટલમાં તો. એ દરરોજ નો દેખાડે એમાં. તું એબસન્ટ હતો. કોણે કીધું? હું કહું ને. લા ભાઈ હું હતો જ હવે લેક્ચરમાં. સાહેબને મને message દરરોજ હતો? નો દેખાડે યાર એમાં. મારી સિટીમાં એબસન્ટ આવી છે. મારી એબસન્ટ છે સિટીમાં. શું કરવાનું આમાં? PED ની આમે નહીં બતાડે પરમાનન્ટ નથી. ઓફલાઈન જ હોય ભાઈ હરોજ. એનું ગ્રાફમાં એનું સબ્જેક્ટ છે જ નહીં. attendance ક્યાંથી અમુક કામ નો હાલે ને ભાઈ સિટીની બધું વાત કરું. મેનેજમેન્ટ સિટી હરખું જોઈએ કેમિકલ અમારે. ટેકનોલોજીની. એ તો સ્પાર્કર સર નું રોજ નું એક બે ની તો ભૂલી જ જવાય. મુકેશ રેકોર્ડિંગ થઈ છે હાલે હાલે ભાઈ તને શું નડે? એમાં કઈ attendance ઘટ વાળા ગ્રાફમાં PED બતાવતા તને જ કઈ નથી. ઘટે એમ નથી. ઓ મમ્મી છે દાણા? આ સર ને ખુદ નું ID નથી આપ્યું હજી. ન હોય.